from both countries. Bilaterally, they have agreed. So things are going to hopefully get better as time rolls on. And so what is the long-term strategy with... Well, long-term wise, I would say I always believe in one thing. It's not about there are no permanent friends or no permanent enemies. I also say there are no long-term friends or long-term enemies, barring a few. So from that perspective, it all depends on how much we meet our end, how much they meet their end, period. And if we at one point of time see that, okay, we have got what we have deserved or what we wanted, we are not, it's not that we're going to stop that, but we're going to lower that level of, that kind of a relation that we are having currently. So it all depends on how things pan out within the next few months, I would say. बस ये थोड़ा थोड़ा बस ऐसे थोड़ा नीचे करो हाँ ऐसे रखो ना थोड़े कम नीचे लाओ अच्छा सा नहीं बस ऐसे नहीं मैं क्या इसलिए जगह में वो सामने आ रहा है ना ये ऑरेंज कलर का इस चक्कर में ऑरेंज को उसको फ्रेम को ठीक करो सब ये काम भी तुम्हारा ही है मैं बोल रहा हूँ बैकग्राउंड को ठीक करना उसको ठीक करो मैं थोड़ा सा उसको और डायरेक्शन दिखा दूँ ये थोड़ा सा दिखा दो उसको Well, I think we don't need to see who's doing what in some other parts of the globe, as long as we are confident of what we are doing. So I would say from that perspective, AI, we are driving the growth, no doubt on that. But we are not going to measure it as to how much US has done or how much China has done. If we measure, the moment हम लोग उस measurement में लग जाएंगे, हमारा खुद का जो standing है, वो नीचे चला जाएगा. We should be, in a way, going ahead. There would be the same thing happened when there was a entire IT surge in the world. India तब सब पूछते थे, देखो US आगे जा रहा है, देखो वो country आगे जा रहा है. अभी कौन है आगे? Who's leading it? Everywhere. The same thing is going to happen. अब not immediately. It will take time, of course. But we will react only when it's reasonably the correct time. Because I wouldn't say too much ahead. And as far as US and China is concerned, of course, they're completely bipolar. It's on one end and one end. Anyway, on strings, totally unattached. Yeah. Good afternoon, sir. Good afternoon. Myself, Mirkong, I'm from Assam. So my question is the concern about journalists, accusation of censorship, media biasness, and pressure on journalists and media freedom, and about media freedom. Where? About the international. Well, from an international scenario, I would say what journalism was 20 years back vis-a-vis what journalism is currently. There has been a huge change, no doubt on that. It's not because of the entry of the digital era. It's also because that idealism which was there in journalism maybe 20 years back and 30 years back, 40 years back, that has receded considerably. And now it's more of a corporate game. Now it's more of a fact that, in terms of how quickly we can get it, what we can get, as long as we can show a face which people know. That's it. So it's no longer those ideal days where if I'm a reporter on the ground, I'm going to find out what's going wrong so that the government gets it corrected. Now I have to show what government is already doing, which is going perfectly fine. I'm just repeating the same thing, saying yes, it's going perfectly fine. And this I'm not about India, I'm talking about the entire globe, and that's the way it goes on. That's the way it operates. But that does not mean that you should get dismayed by this. There are still, internationally speaking, I would say the situation in the Middle East compared to Europe, US and Europe are far more vocal compared to the Middle East and Southeast Asia. So from that perspective, I would say still there is a ray of hope, no doubt. Yes, sir. Sorry, we just have to wait. मान्यवर प्रणाम। मेरा नाम सचिन कुमार है। मैं CSU LLB ऑनर्स फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। अलवर का राजस्थान का रहने वाला हूँ। मान्यवर, मेरा प्रश्न है, जहाँ पर उपस्थित मेरे साथ साथ समस्त युवा तरुणाई का और भारत में रहने वाले लगभग समस्त
नागरिकों का ये प्रश्न है, जब पाकिस्तान हम पर बार बार किसी न किसी रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जनहानि करता है, हमारे लाखों करोड़ों संसाधनों का नुकसान करता है, तो हम भारत में पाकिस्तान का विलय क्यों नहीं करते? भारत को अखंड बनाने के लिए सरकार क्या काम कर रही है? थैंक यू। देखिए, सबसे पहले सवाल आपका ठीक है। इसका उत्तर अगर आप सरकारी उत्तर मांग रहे हैं तो मेरे से मत मांगिए। आई एम नॉट द पर्सन टू रिप्लाई बैक द गवर्नमेंट्स स्टेटमेंट हियर, बट ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। सर, हाँ पूछिए। आप इसको किस रूप में देखते हैं? आप अपने स्तर से बताइए, कृपया हिंदी में बताने का कष्ट करें। अच्छा ठीक है, मैं हिंदी में ही बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल दूंगा, उसी जगह का एग्जाम्पल दूंगा जिस जगह मैंने आज से करीब 25 साल पहले विजिट किया था पाकिस्तान के अंदर। और दो चीज़ें हैं वहाँ पे। एक, जो वहाँ के निवासी थे, एक भाई साहब थे, मैं उनसे ऐसे ही वार्तालाप करते जा रहा था, तो मैंने पूछा उनसे कि आपको भारत के बारे में क्या आपका राय है। मैं 25 साल पुराना बात कर रहा हूँ। तो रिप्लाई में उन्होंने ये कहा था, देखिए हम तो भारतीयों के साथ एक अच्छा संबंध हमेशा मैंने इंडिविजुअली हम रखना चाहते हैं। मैं बोला, इंडिविजुअली आप रखना चाहते हैं, वो रखना चाहते हैं, सरकार नहीं रखना चाहते हैं आपके, क्योंकि ये हुआ ही नहीं है कभी। 1 2, जहाँ तक अखंड भारत का आप बात कर रहे हैं, मैंने एक बहुत ही छोटा, मैं ये कोई आई एम नॉट प्रोपेगेटिंग एनीथिंग, बट एक बहुत ही छोटा एक चीज़ का मैं बात कहूँगा। वो है एक इंडियन फ्लैग, जो कुछ मेरे ख्याल से ये पानी का बोतल से भी थोड़ा सा छोटा होगा। मैंने उसको पीओके के अंदर डाल दिया, मिट्टी में धीरे करके, सो दैट द फ्लैग इज फ्लाइंग। इट्स नॉट माई वर्क, इट्स समथिंग विच इंडिया wants. I am not me, I am talking as an Indian here. So उस चीज में भले वो हवा से थोड़ा सा आगे चला जाएगा, भले कोई पैर से उसको रॉन्ग देगा, वो अलग बात है। लेकिन मैंने भले छोटे स्तर पे हो, बहुत ही छोटा स्तर पे है, पानी का बोतल से भी छोटा है, लेकिन छोटा सा एक काम किया, क्योंकि वो लगा कि ये जगह, जो जगह मुझे वो टेररिस्ट मुझसे कह रहा था आपका हिंदुस्तान वहां पे है, मैंने जवाब एक ही दिया, ये भी तो है। फिर अचानक मुझे लगा बंदूक लेके खड़ा है, मार तो नहीं देगा, मैंने गलत तो नहीं बोल दिया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई डिड नॉट टेक बैक माई स्टेटमेंट, बट आई ट्राई टू मैनूवर अराउंड इट। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, जहां तक अखंड भारत का बात है, वो होगा, होके रहेगा। कब, वो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें कोई दोहराई नहीं है कि हेलो, गुड आफ्टरनून सर। एक मिनट एक और बात वापस बता दें आपको, एक थोड़ा सा प्रयोग और कर देते हैं। क्योंकि 4:30 आपको दोनों को जाना है, तो हमारा एक जो महत्वपूर्ण प्रयोग होता है, वो प्रयोग का टाइम हो गया, उसका 4:30 का टाइम है। अब आपको खाली इतना सा ध्यान रखना है कि जिस भाषा में जो आदमी बोल चुका है, दोबारा उस भाषा का उपयोग नहीं करेंगे। हमारा ये जो सत्र है, ये 1 घंटे का खाली और खाली भारतीय भाषाओं में होता है, जिसमें आप अपनी डायलेक्ट या अपनी बोली या अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रांसलेशन करना आता है तो आप ट्रांसलेशन करेंगे, नहीं करने आता है तो कोई बात नहीं है। और आपको मैक्सिमम 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करनी है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी और मिजो, आपकी थाई, आपकी वेस्ट इंडीज, ये लैंग्वेज में हमको बोलना है। तो लैंग्वेज वाले ही लोग हाथ खड़े करेंगे। जिस भाषा को बोल दिया गया है उसको दोबारा दूसरा आदमी नहीं बोलेगा। ठीक है, निश्चय दीजिए। सबसे पहले कौन है, कौन सी भाषा है? सबसे पहले मिजोरम को दीजिए, अरुणाचल को दीजिए। A फॉर अरुणाचल, A फॉर अरुणाचल। इधर दीजिए माइक, ये इसमें दीजिए। ये अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब बिल्कुल कमेंटबाजी, बिल्कुल चर्चा, बातचीत बिल्कुल नहीं होनी है।
हंसना बिल्कुल नहीं है। उनके बोलने के बाद में हम लोग अपनी ताली बजाएंगे, ठीक है? वो अपनी कौन सी डायलेक्ट आपकी वो बताएंगे।